Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So today we are going to learn few things about artificial intelligence. Recently there have been few changes. कुछ नए प्रोग्राम्स आए हैं, कुछ नए वेबसाइट्स आए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है. We are going to learn, we are going to try to understand what are the challenges that we will be facing in future. So let us try to understand what is artificial intelligence. As we all know, this is a rapidly growing field that has a potential to impact the future of humanity. These are basically based on machine learning. There are challenges as well as opportunities which are presented by AI, and it is important to understand both. Why we need to understand challenges and opportunities? Because AI is not a future, it is a present. We already have so many apps, so many websites that are working on AI, and if we don't try to understand this development, then it will be challenging to pursue the careers in future. So it is no longer a futuristic thing. Some 5 years back we were talking that AI is going to be a future, बहुत सारे changes आने वाले हैं, लेकिन ये already चालू हो चुका है. It is no longer a thing of future, but a rapidly growing technology. AI has also made a significant advancement in many industries, including healthcare, finance, then retail, transportation, and in education field also. So, what are the AI tools that we are using today? In present situations, there are so many tools that are available online. Like for machine learning platform, there is TensorFlow, then PyTorch, then Skitlearn, then in natural language processing, which is also in short form we call it as NLP tools, we have Spacey, then NLTK, OpenAI, GPT-3. Then we have chatbots, virtual assistant like Google Assistant, Amazon Alexa. We all know few things about Alexa, Google Assistant. They are AI based. So before understanding challenges and opportunities, let us try to use one of the tool. What I am going to show you is OpenAI GPT-3, this particular tool. Okay, so let me share my screen. अभी यहाँ पे ये एक, जैसे हम WhatsApp पे चैट करते हैं वैसा ही है ये दिखने में तो, लेकिन यहाँ पे जो सामने वाला बोलने वाला है वो है एक AI बेस्ड रोबो बोल सकते हो या बोट बोल सकते हो. ओके, एंड वी कैन ट्राई टू seek help from this bot. Okay, this is called ChatGPT. What we have to do basically is we have to type the questions, whatever queries we have, and we get the answer out of it. So let us try to ask one question to it and check how it is going to help. For example, the presentation that I have made here, also I made use of ChatGPT. What I did was I just typed presentation on AI, or you can type artificial to be more specific, artificial intelligence challenges and opportunities, and we have to simply type send message. So it has started working. Can you see? आप देख पा रहे हो सब लोग? तो मुझे प्रेजेंटेशन बनाना था, तो मैंने उस टाइप का क्वेश्चन पूछा उसको और उसने मुझे कुछ पॉइंट्स दे दिए जिससे मैं अपना पीपीटी बना सकूं. तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, उसने शुरुआत में मुझे 4 चैलेंजेस के बारे में बताया जो AI के वजह से आ सकते हैं या आ चुके हैं, और फिर उसने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई हैं, जैसे इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेशन, पर्सनलाइजेशन. ये सारी चीज़ें उसने मुझे ये पॉइंट्स के स्वरूप में उसने मुझे बता दी. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क दिस tool and it will give you a trustworthy answer also. You can make changes, and since this is based on machine learning, if you ask the same question after 8 or 10 days, it will be more detailed. उसमें ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे, उसमें कुछ चेंजेस भी रहेंगे, मतलब वो खुद को भी अपडेट कर रहा है. ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन दिस वन टूल, एंड देर आर सो मेनी टूल्स online available. Okay, there are some tools which are related to digital arts also. Like I will try to show you that particular tool also. It is called as DALL-E. I will share the screen, जिससे आप डिजिटल आर्ट जनरेट कर सकते हैं. तो अगर मुझे एक स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म चाहिए, जैसे डॉग इन द एरोप्लेन विथ मून इन द बैकग्राउंड, तो ये मैंने कुछ वर्ड्स डाले हैं यहाँ पे.
सो यू कैन सी इट हैज़ ऑलरेडी जनरेटेड द आर्ट फॉर्म। अगर मुझे इसमें से इसका कुछ वेरिएशन चाहिए, जैसे इस आर्ट फॉर्म का वेरिएशन चाहिए, तो मैं इस पे वेरिएशंस पे क्लिक करके उसी टाइप के अलग अलग आर्ट फॉर्म्स जनरेट कर सकता हूँ। ये देखो, ये ओरिजिनल था, ये इसके वेरिएशंस हैं। तो इस तरह से ये टूल काम करता है। ये डिजिटल आर्ट फॉर्म्स में काम करता है। हमें अगर अलग अलग टाइप का आर्ट फॉर्म चाहिए, जैसे वाटर कलर में कुछ पेंटिंग चाहिए, या फिर वेक्टर ग्राफिक्स चाहिए, या फिर कुछ ऑयल पेस्टल्स में ड्राइंग चाहिए, तो उस तरह से वो ये ड्राइंग बना के दे सकता है। जैसे कि अभी इसमें ही अगर मैं चेंज करूँ, आई विल गो बैक और इसको मैं एडिट करता हूँ। आई विल टाइप ऑयल पेस्टल ड्राइंग ऑफ अ डॉग इन एरोप्लेन, बाकी सब वही रख रहा हूँ मैं अभी। तो इसने अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ऑयल पेस्टल्स में इसने ड्राइंग जनरेट किए हैं। क्या आप देख पा रहे हैं इसको सब, ये ड्राइंग्स को? कैन समवन रिस्पॉन्ड? अब दिख रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स इसमें जनरेट कर सकते हैं। टीचर्स, यू माइट हैव सीन couple of tools right now, and there are so many tools present that it can easily replace a person's job also. Now, the challenges of AI. Let us see some challenges that we might face in future. First is the job displacement. AI has the potential to automate many jobs, leading to job loss and unemployment. मतलब अगर हम जल्द ही इससे एक्वेंटेड ना हो, या फिर ये अगर हम ना सीखें, तो हमारा जॉब भी जा सकता है। इतना पोटेंशियल है, क्योंकि अभी जो हम ये टूल्स देख रहे हैं ये लेवल 0 पर है। मतलब ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, अभी ये डेवलप नहीं हुए हैं। तो सोचो अगर ये 4-5 साल में डेवलप हो जाए, तो मैं इससे मोशन ग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकता, मतलब ये एक फिल्म भी बना पाएगा एनिमेटेड। तो इतना इसमें स्ट्रेंथ है, इतना इसमें पोटेंशियल है कि ये ढेर सारे जॉब्स कर सकता है अकेले। तो जैसे कुछ सालों पहले, जैसे मेरे अर्लियर जनरेशन में, मेरे पेरेंट के जनरेशन में जब कंप्यूटर आया था, तो ऐसी घबराहट फैली हुई थी। क्यों घबराहट थी? क्योंकि लोगों को डर था कि कंप्यूटर कहीं उनकी जॉब ना ले ले। कुछ जॉब्स गए, कुछ जॉब्स नहीं जनरेट हुए। तो जो सिचुएशंस के हिसाब से जिन्होंने खुद को ढाला, जिन्होंने खुद को डेवलप किया, वो सर्वाइव कर पाए उस सिचुएशन में। तो एआई के साथ भी हमें उसी तरह से रहना है। हमें इससे जितना हम सीख पाए इस नए टूल्स को, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। ये था सिर्फ जॉब्स के बारे में। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एआई एल्गोरिदम्स कैन परपेचुएट एंड एम्पलीफाई एग्जिस्टिंग बायसेस इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस और बढ़ सकती है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, इफ़ वी डोंट कंट्रोल एआई प्रॉपर्ली। फिर इश्यूज आ सकते हैं प्राइवेसी को लेके, क्योंकि एआई सिस्टम जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है एंड इट कैन बी पोटेंशियली यूज्ड फॉर मैलिशियस पर्पसेस बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट इंडिविजुअल्स, okay, whose intentions are not good, they can use it in a bad way. तो ये प्राइवेसी का इशू एक आ सकता है। और क्या चैलेंजेस है? रेगुलेशन। There is currently a lack of clear and consistent regulations around the development and deployment of AI, which can lead to ethical and safety concern. ठीक है, तो अगर हम ठीक से कंट्रोल ना कर पाए, जैसे मैं अभी कह रहा था आपको, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं सेफ्टी रिलेटेड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ये अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी हम बात करेंगे। AI कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट्स एंड एनालिसिस। मतलब हम किसी भी प्रॉब्लम का अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं अगर हम AI टूल्स का ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो। फिर एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा कोई स्टार्टअप है या हमारा कोई बिजनेस है, तो उसको और एफिशिएंटली हम रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। और क्या हो सकता है? जो हेल्थ केयर है वो और डेवलप हो सकता है। जैसे हम घर बैठे अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सिम्टम्स उसमें टाइप करके या उसका फोटो निकाल के उससे रिलेटेड ये हमें क्या डायग्नोसिस कर सकता है या क्या मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है, ये सब कर पाएंगे हम AI पे। देन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। AI कैन हेल्प एड्रेस मेनी ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने? क्लाइमेट चेंज है, फूड है, वाटर स्कैर्सिटी है, पॉवर्टी है। ये चैलेंजेस को हम अच्छी तरह से सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस चैलेंजेस पर। तो चैलेंजेस हैं, बट वी शुड कीप
one thing in mind that no one can replace human beings. ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इमोशनल अटैचमेंट कहो, इमोशनल क्वेश्चन कहो, EQ जिसे हम कहते हैं। पहले के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे IQ पे, अभी लोग स्ट्रेस दे रहे हैं EQ पे, इमोशनल क्वेश्चन। क्योंकि लोगों के साथ हमें कैसे डील करना है, लोगों के साथ हमें कैसे काम करना है, ये AI कभी नहीं कर पाएगा। अगर हमें इस चैलेंज को फेस करना है तो हमें इस टाइप के जॉब्स में ये जो स्किल्स है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहो चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अगर हम डेवलप करें, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, मैं किसी टीम का लीडर हूँ तो उस टीम को कैसे लीड करना है, ये कभी AI हमें रिप्लेस नहीं कर पाएगा इस मामले में, जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस है। जैसे हम टीचर्स, अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो टीचर्स को अलग अलग टाइप के स्टूडेंट के साथ डील करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ सिखाना नहीं होता, सिखाना तो है तो यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं हम कुछ, लेकिन स्कूल में बच्चे क्यों आते हैं? क्योंकि स्कूल में जो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, वो हर टाइप का स्टूडेंट AI नहीं पहचान सकता। AI नहीं पहचान सकता कि एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, जो जिसका ध्यान नहीं है, जिसका फोकस नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उसको पढ़ाई में, ये AI नहीं कर पाएगा उसे सिखाने का काम, वो सिर्फ टीचर्स कर पाएंगे। तो ये जो स्किल्स है, ये अगर हम डेवलप करें तो आने वाले फ्यूचर में हम सस्टेन कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत सारे बनाए थे आपकी पीटी। थैंक यू सर। मनोज सर। हेलो सर। हाँ सर, बोला सर। खूप छान होतं। थैंक यू सर, थैंक यू।